Suprabhat and very good morning. Hearty greetings to everyone on the occasion of 13th Biennial AgriCorp Conference and Buyer-Seller Meet, creating an ecosystem for integrating FPOs and AgTech startups into a value chain. सर्व मान्यवरांचे आगमन होत आहे आणि दीप प्रज्वलनाने मी सर्वांना कार्यक्रमाची मंगलमय सुरुवात करण्याची विनंती करते. I request all the dignitaries to start the function with the auspicious lamp lighting. Honorable Professor Ramesh Chandji, member of Niti Aayog, I request the dignitaries. A very warm welcome to all the dignitaries on the dais, honorable speakers, special invitees, farmers and all the delegates pan-India. कृषी व्यवसायाशी निगडित सर्व निमंत्रितांचे सहर्ष स्वागत करते. पूरे भारतवर्ष से आए हुए सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ. मैं निवेदिका डॉक्टर मृण्मयी. It is said that if you eat today, thank a farmer. आपण जितक्या वेळा काही खातो तितक्या वेळी आपण शेतकऱ्यांचे आभार मानले पाहिजेत. निदान मनातल्या मनात कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे. Agriculture is our wisest pursuit because it will in the end contribute most to the real wealth, good morals and happiness. Creating, this is a conference, 2 days conference, 13th Biennial AgriCorp Conference and Buyer-Seller Meet, creating an ecosystem for integrating FPOs and AgTech startups into a value chain. Let's begin. May I invite Director General Shri Sandeep Khosla ji for the opening remarks. Shri Sandeep Khosla ji. Good morning and a very warm welcome to all of you. At the outset, I would just like to inform all of you that the Honorable Chief Minister Shri Eknath Shinde ji was supposed to come here, but due to some last minute change in program, he sent his regrets and sent the best wishes for today's AgriCorp conference and exhibition. But the Honorable Minister for Agriculture, Shri Abdul Sattar ji is on the way, and he should be with us in the next 10 to 15 minutes. We are tracking his time so that we will, as Mr. Goyal has said, we'll just delay the lamp lighting till Mr. Sattar comes here. So with that, a warm welcome to all of you. Professor Ramesh Chand, member Niti Aayog, who also holds the rank of a Union Minister of State. Shri Sudhir Goyal, Bombay Chambers Board of Directors Agriculture Committee's mentor, Shri Rajan Raje, a dear friend of mine and who heads our Agri Committee and our MSME Committee, two of the most important committees of the Chamber. My colleagues Sunil and Prashant and Tarini, who have put in a lot of effort to make this a success. And all you ladies and gentlemen, thank you for being here. Unfortunately, what's happened is that the Google map is showing and taking everyone to a different place. So by the time we tell them and people then start coming here, it's taking time. So as you can see, people are still walking in, and even our members who've been here earlier have got delayed because the Google map is taking them to the conference center. It's a big ground here. So hopefully when you all come tomorrow, you'll directly come here and we won't waste as much time as we had to today. So a little about the Bombay Chamber. This is the oldest chamber in the country. We set this up in 1836. There were some 7 Britishers and 3 Parsi gentlemen who set the Bombay Chamber up
in 1836, naturally with the aim of promoting trade and commerce in the city of Bombay, as it was known then. And over the years, the Bombay Chamber has been instrumental in a lot of major activities, including bringing the first railway line to India. So Bombay to Thane, which was started in 1858, was because the Bombay Chamber and the trade at that point of time put a lot of work. Today we do a lot of work in various areas, interaction with the government, interacting with a lot of the MSMEs, interaction with SEBI, with RBI, and ensuring that there is a huge amount of growth. Years back, all these companies which joined, companies like Tata's, companies like Birla's, all who were members, were instrumental in the growth. But today, all of them are very, very enthusiastic in looking at how they can handhold and uplift the MSME. And that's the Chamber's major work today. 70% of our members are small and medium enterprises. And the Chamber continuously looks at how can we do that. We recently did a project with the Asian Development Bank where we had MSMEs and looked at them as to how they could internationalize their businesses to the Mekong region, that's Vietnam, Thailand and Cambodia. There's another initiative which we are currently doing with the BMC where we're looking at how their sanitation and pollution in the city of Mumbai can be improved with the help of startups. 19th is where we have an inauguration ceremony at the Taj Hotel with a lot of dignitaries there. We're also tied up with the Wadhwani Foundation to see as to how MSMEs can be better. We have regular polyclinic for all these people with various big members helping out. I would also like to just remind everyone that in the kit which we have, we've given a form which is on the 5th Economic Outlook Survey which the Chamber does. And this is a survey which is very, very important. This says as to what is the outlook from here onwards in the next 1 year of how the trade and business will grow and what are the difficulties here. So I would request all of you to look at that and have that filled up so that this is something which would help the Chamber speak to the government of India, to the government of Maharashtra and see as to how some of the ease of doing business can be improved as far as Mumbai city is concerned. Regarding AgriCorp, the Bombay Chamber has been organizing a series of AgriCorp on a biennial basis since 2001. The distinctive conference has always sought to provide roadmaps to facilitate environmental to stakeholders and ensure that there is a growth and development all around. So with that, thank you once again, all of you, to be here. And over to you, ma'am. Thank you so much, sir, for the wonderful opening. I request Shri Rajan Raje and Shri Nitin Dedia ji to please come upon the dais. Shri Rajan Raje, Director, Nichem Solutions Private Limited, Board Member BCCI and Agricultural Committee Member, Bombay Chamber of Commerce and Industry. Shri Nitin Dedia ji, Managing Partner JJ Overseas and Member of Agricultural Committee, Bombay Chamber of Commerce and Industry. Moving ahead, I request Dr. Sudhir Kumar Goel, IAS, former Additional Chief Secretary, Agriculture and Marketing, Government of Maharashtra. I request him to address the audience on this occasion. Dr. Sudhir Kumar Goel. Thank you. We are already late by 1 hour and we are still waiting for the minister. So we have to be managing the time. What I want to tell you in just a few minutes about the plan for these 2 days. So Honorable Professor Ramesh Chand, DG Sir, Mr. Sandeep, my colleague Mr. Rajan Raje, Mr. Chetan, and the esteemed audience. I can see many of stalwarts in the field of agriculture, Mr. Kaushik from UPL, I can see Mr. Rajesh Sinha, Vilas. You can see this is the galaxy of people who are there. You will find very difficult.
You have from Punjab, Mr. Thin, Puneet Thin, who is already working exceedingly well with 43 FPOs. We have got Yogesh Thorat, who is working on. Honorable Minister has arrived. Thank you very much. I think we will take it up at a later stage. We will just have the opening first and then we will start. Welcome to the Minister. Thank you, sir. माननीय कृषी मंत्री अब्दुलजी सत्तार साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. आपण जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करूया. कार्यक्रमाची मंगलमय सुरुवात दीप प्रज्वलनाने करण्याची मी सर्व मान्यवरांना विनंती करते. महाराष्ट्र राज्याचे माननीय कृषी मंत्री अब्दुलजी सत्तार साहेब, ऑनरेबल प्रोफेसर रमेश चांद जी, मेंबर ऑफ नीति आयोग, श्री संदीप खोसला जी, डायरेक्टर जनरल बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डॉक्टर सुधीर कुमार गोयल, श्री राजन राजे, श्री चेतन देलिया. I request all the dignitaries to start this auspicious function with the traditional lamp lighting. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya. अंधारातून प्रकाशाकडे, अज्ञानातून ज्ञानाकडे वाट दाखवणारा तो दीप प्रज्वलनानं कार्यक्रमाची मंगलमय सुरुवात होत आहे. We pray the Almighty to guide us, to take us from darkness to light, from ignorance to knowledge. The auspicious lamp lighting Thank you so much, everyone. Let's welcome all the dignitaries with the flowers and memento. I request Shri Sandeep Khosla ji, Director General Bombay Chamber of Commerce and Industries, to felicitate all the dignitaries. Honorable Agricultural Minister Shri Abdul Sattar ji, Honorable Professor Ramesh Chand ji, Member of Niti Aayog, Chairman of Institute of Economic Growth, New Delhi. He has a PhD in Agricultural Economics. Dr. Sudhir Kumar Goyal, IAS, former Additional Chief Secretary, Agriculture and Marketing, Government of Maharashtra. Shri Rajan Raze, Director, Nichem Solutions Private Limited, Board Member, Bombay Chamber of Commerce and Industry, and Member, Agricultural Committee, BCCI. Shri Nitin Delia, Managing Partner, Shri Chetan Delia, Managing Partner, JJ Overseas, and Member of Agricultural Committee, BCCI. Thank you so much. We are fortunate to have Honorable Professor Ramesh Chand ji with us today. Professor Ramesh Chand is also member of Board of Trustees of International Maize and Wheat Improvement Center, Mexico, and Policy Advisory Council of Australian Centre for International Agricultural Research, Australia. In the recent past, he also held the position of member of 15th Finance Commission. Professor Chand
has served in senior academics positions and authored 7 books and published more than 100 research papers in reputed national and international journals in the areas of agriculture, growth, food policy, farmers' issues, market and trade. In recognition of his contributions, Professor Chand has received national and international awards. Now, may I request Professor Ramesh Chand to deliver the keynote address. Honorable Professor Ramesh Chand. Chief guest of today's function, Minister of Agriculture, Government of Maharashtra, Shri Sattar Sahab, Shri Goyal ji, Shri Khosla ji, Rajan ji, चेतन जी और इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए हुए कारपोरेट जगत के बंधुओं, एफपीओ, एग्रीकल्चर स्टार्टअप से आए हुए सभी डेलीगेट्स और किसान भाइयों, मुझे सबसे पहले तो जो थीम बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस गोष्ठी के लिए चूज़ किया, उसे देखकर प्रसन्नता भी हुई और उसे देखकर मुझे यहाँ आने के लिए मेरा मन भी बना। उसकी वजह ये है कि यदि हम गहराई में जाएं और यदि हम दुनिया के रुझान देखें तो ये साफ वहाँ ज़ाहिर होता है कि एग्रीकल्चर का फ्यूचर एग्रीटेक स्टार्टअप में है और स्मॉल एंड मार्जिनल का फ्यूचर एफपीओ में है। और पिछले 25-30 साल में हमने देखा है कि लगभग हर फील्ड में एक नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशन इतनी ज़्यादा आई कि बिल्कुल उन्होंने हर चीज़ को बदल के रख दिया। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कुछ भी हो, उनको एक हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से एक उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत स्लो रेट पे हुआ। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन बहुत स्लो रेट पे ये हुआ। उसके रीज़न हमें ज़रूर पहचानने चाहिए, क्योंकि आगे हम तभी बढ़ पाएंगे यदि हम उसके रीज़न को पहचान लेंगे और उसे कैसे एड्रेस करना है उसे देख लेंगे। जब भी कोई टेक्नोलॉजी या इनोवेशन आती है वो किसी भी समाज के लिए लॉन्ग रन में बेनिफिशियल होती है, यदि नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी बहुत जल्दी। लेकिन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बारे में बहुत पहले एक शुम्पीटर इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है हमें पुराने सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके नए सिस्टम को बनाना होता है और इसमें डिस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है। लेकिन उस डिस्ट्रक्शन के नीचे एक क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन, जो उन्होंने कहा कि वो एक क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन है। तो हमें भविष्य में जाने के लिए ये जो पास्ट का टेक्नोलॉजी है, पास्ट का मैकेनिज्म है, उसको छोड़कर हमें एवोल्यूशन तभी होगा हमारा कि हम यदि नए को अडॉप्ट करें। क्योंकि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन डिसरप्टिव होती है, इसलिए जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, क्योंकि उसमें विनर होंगे, लूजर होंगे, ओवरऑल सोसाइटी बेनिफिट करती है, तो जो उसमें लूजर बनते हैं वो उसको हमेशा रजिस्ट करते हैं। और एग्रीकल्चर में उनका नंबर जो रजिस्ट करने वाले हैं उनका बहुत ज़्यादा नंबर रहा। तो ये एक मेन रीज़न है कि एग्रीकल्चर में इनोवेशन को जो है उसका एक स्लो डाउन रहा। कुछ उसके बारे में इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, कुछ उसके बारे में पोटेंशियल भी इतना डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुआ, और ज़्यादातर जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे उन्होंने उसे रोक के रखा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ग्लोबली
बहुत रैपिड रेट से एग्री स्टार्टअप और इनोवेशन एग्रीकल्चर में भी आ रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री में भी आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्लोली आ रहे हैं। और उस वजह से अब ये ऐसे आंकड़े भी आ रहे हैं, ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी ने जो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री का डिवाइड था एग्रीकल्चर में, उसको या तो ख़त्म किया या बहुत नैरो किया। और उसी वजह से डेवलपिंग कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे उनकी डिपेंडेंस फूड सिक्योरिटी के लिए, कई चीज़ों के लिए डेवलप्ड कंट्री पे नहीं रही, और वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ये सब नीतियाँ बनाने में कामयाब हुए। लेकिन अब ये जो सेकंड वेव ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन दुनिया में आ रहा है, इसमें डेवलप्ड कंट्री में जो एग्रीकल्चर, आप कहीं भी गूगल करके देख लीजिए कि पुराने तौर तरीके एग्रीकल्चर के डेवलप्ड कंट्री ने बिल्कुल छोड़ दिए। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में अभी बहुत छोटी छोटी पॉकेट्स है जहाँ पर इसकी शुरुआत हो रही है, बहुत स्लो रेट से हम ये अडॉप्शन कर रहे हैं। इस वजह से एक द्वारा से डिवाइड अपीयर होना शुरू हो गया है। जो विकसित देश हैं उनमें जो एग्रीकल्चर हो रही है, और जो विकासशील देश हैं जो उनमें ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आ रही है। यदि हम चाहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी की तरह हमारा देश अमेरिका से पीछे ना रहे, किसी भी यूरोपियन देश से पीछे ना रहे, तब हमें ये जो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है और जो इनोवेशन आ रही है, इसे हमें प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करके, इनकरेजमेंट देकर करके इसे अडॉप्ट करना चाहिए। और इसी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर में चुनौतियां आई हैं, उसके लिए भी हमारी एक आशा जाग रही है कि हम इन चुनौतियों को, चाहे वो पानी की चुनौती हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की चुनौती हो, चाहे वो किसान की इनकम बढ़ाने की चुनौती हो, या एम्प्लॉयमेंट की चुनौती हो, इन सब के लिए एक आशा की किरण इन इनोवेशन में से, एग्री स्टार्टअप की ओर से नज़र आती है कि हम इन चुनौतियों को एड्रेस कर पाएंगे। और जिस तरह बाकी फील्ड में प्रोग्रेस हुई है, तो उसी तरह से जो अवसर हैं हमें भी साइंस ने दिए, हमें भी टेक्नोलॉजी ने दिए, तो वो अवसर हमारे पास भी अब आ रहे हैं। जैसा हम मेडिकल साइंस में देखते हैं कि क्या नई नई डेवलपमेंट हो गई, यहाँ तक संभव हो गया कि यदि कोई आदमी अफोर्ड कर सकता है तो वो अपना ऑपरेशन बम्बे के हॉस्पिटल में यूएसए के डॉक्टर से करवा सकता है। डॉक्टर यूएसए में है और पेशेंट बम्बे में है, ये चीज़ें संभव हो गई हैं। तो इसी तरह ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है हमने कोविड के दौरान में देखा कि पहले हमने सोचा नहीं था कि हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई लंदन में बैठा है, कोई न्यूयॉर्क में बैठा है, कोई पुणे में या कहीं गांव में कोल्हापुर में बैठा है, तो हम एक दूसरे का फेस देखकर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इस तरह की जो एक फेस सेविंग और ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस है, वो हमें अब एग्रीकल्चर में भी लानी होगी, और तभी हम एग्रीकल्चर की चुनौतियां जो आ रही हैं उन्हें एड्रेस कर पाएंगे। मैं एक दो चुनौतियां आपके साथ शेयर करूंगा और एक दो अवसर मिसाल के तौर पर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ऐसी बहुत सी चुनौतियां हैं, ऐसे बहुत से अवसर हैं जो एग्री स्टार्टअप के थ्रू, एफपीओ के थ्रू अब संभव हो गए हैं कि हम उनको जो है उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। सबसे पहली चुनौती अब एग्रीकल्चर में ये आ रही है कि हमारा प्रोड्यूस कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कॉम्पिटिटिवनेस लूज कर रहे हैं। यदि हम बिग वे में एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं देते डोमेस्टिक मार्केट में, तो हमारा प्रोड्यूस compete नहीं कर पा रहा इंटरनेशनल मार्केट में। हमने देखा कि अभी चलो यूक्रेन बाहर हो गई और कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि अचानक ही सब चीज़ें जो है उनकी प्राइसेस हाई हो गई, तो हमें भी एक्सपोर्ट में दिक्कत नहीं आई। लेकिन यदि हम 1.5 साल पहले की, 1 साल पहले की सिचुएशन देखें, तो हमारे पास इतनी गेहूं थी कि हमें पता नहीं था कि इसको कैसे बेचें। लेकिन क्योंकि हमारा एमएसपी ही इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा था, तो हमें उसको बेचने की एक समस्या हुई। इसी तरह चीनी में हमारी खपत 26 मिलियन टन थी, पैदावार 32-33 मिलियन टन हुई,
और बीट की इंटरनेशनल प्राइसेस हमारे से 30% कम थी, तो हम उसको बेच नहीं पाए। कहाँ हम उसकी मार्केट ढूंढें, कैसे करें? और जो हम अभी आगे जाएंगे, ये हमारी कैलकुलेशन है नीति योग में इस तरह की कि हमारी प्रोडक्शन अभी अगले 10 साल में फूड की 3-3.5% के एवरेज रेट से बढ़ेगी। किसी साल में कम होके 2% हो सकता है, कभी 5% हो सकता है, लेकिन एवरेज कोई 3-3.5% आएगी। लेकिन डोमेस्टिक डिमांड जो है वो केवल 2% से बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट इंडिया में डिसेलरेट हो रहा है। पिछले 20 साल पहले 2% से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था, अब 1% से अगले 10 साल में कम होने जा रहा है। इनकम को भी यदि हम फैक्टर इन करते हैं तो दोनों का मिला के हमारे फूड की डिमांड इंडिया में लगभग 2-2.25% पर ईयर के हिसाब से बढ़ेगी। इसका संदेश ये है कि यदि प्रोडक्शन फूड की 3-3.5% बढ़ रही है, डिमांड डोमेस्टिक इकोनॉमी में 2-2.25% से बढ़ रही है, इसका मतलब है कि लगभग 1/3 ग्रोथ ऑफ फूड सेक्टर हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें ओवरसीज मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस कोलैप्स हो जाएंगी या फिर गवर्नमेंट को भंडार बना के रखने पड़ेंगे। तो यदि हमें उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है तो उसके लिए हमें कॉम्पिटिटिव भी होना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ा मैं फैक्टर देखता हूँ कि हमें एग्री स्टार्टअप FPO की क्यों ज़रूरत है, कि हम कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल मार्केट में होने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना हो सके उतना कम करना पड़ेगा, और वो संभव है, और कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग जितना कम हो सके उसको करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कम करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक का कॉस्ट कम करना पड़ेगा। तो हर जगह पे जो एफिशिएंसी है वो लानी पड़ेगी, तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में compete कर पाएंगे। वरना हम उसको, सरकार चाहे तो सपोर्ट भी एक लेवल से ज़्यादा नहीं दे पाएगी। WTO के रूल्स हैं, हम उसका हिस्सा हैं, फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें। तो मैं ये देखता हूँ कि सबसे बड़ा रोल जो एग्री स्टार्टअप पे करेगा, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का करेगा, प्री हार्वेस्ट में, पोस्ट हार्वेस्ट में। तो उसके बहुत उदाहरण हैं यहाँ पर एग्री स्टार्टअप के रोल। लोग हैं, किसान हैं। महाराष्ट्र तो अग्रणी प्रदेश रहा है हमेशा ही इनोवेशन को अडॉप्ट करने के क्षेत्र में। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, जो हम फर्टिलाइज़र ब्रॉडकास्ट खेत में कर देते हैं, उसका 2/3 हवा में उड़ जाता है या पानी में चला जाता है, केवल प्लांट को 1/3 यूज़ होता है। लेकिन ऐसे अब प्रिसीजन मेथड ये डिटेक्ट करके कि प्लांट को किस समय फर्टिलाइज़र दिया जाए, किस रूप में दिया जाए, तो हम ये जो एफिशिएंसी है इसको 33-35% से बढ़ाकर 70-75% तक ले जा सकते हैं। तो जाहिर है यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। इसी तरह पानी है, इसी तरह लेबर है, इसी तरह कई और चीज़ें हैं। तो इन सब में यदि हमारे जो एग्री स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि एग्री स्टार्टअप का मतलब ये है कि एक तो जो मशीन की एफिशिएंसी है उसको लाना, दूसरा कि जो ज्ञान है उसको तेज़ी से एग्रीकल्चर में लाना। पहले हम एक्सटेंशन करते थे पर्सन टू पर्सन, वो बहुत ही कॉस्टली पड़ती है और वो बहुत इंटेंस नहीं हो सकती, उसकी रीच बड़ी कम होती है। और हर जगह हम देख रहे हैं, हर प्रदेश में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम कई जगह कमज़ोर हो रहा है और कई जगह कोलैप्स हो रहा है। ये एक सच्चाई है कि पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम इंडिया में लगभग कोलैप्स होता जा रहा है। तो यदि हमारे पास ज्ञान है भी लेकिन एक्सटेंशन नहीं है, उसको डिसेमिनेट करने की हमारे पास मशीनरी नहीं है, तो वो फिर ज्ञान लैब में या किसी व्यक्ति के पास ही रह जाएगा। लेकिन नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटलाइजेशन, ICT ने ये पॉसिबल कर दिया है कि यदि हमने किसी को ज्ञान पहुंचाना है तो 70-80% हम बिना पर्सनल कांटेक्ट के उसके तक पहुंचा सकते हैं।
ये संभव हो गया है आज के ज़माने में। ये सब चीज़ें अब कॉमन है कि किसी फसल को बीमारी लगी तो उसे एक्सटेंशन एजेंट के पास जाने की ज़रूरी आवश्यकता नहीं है। उसने अपना पिक्चर उस पर लोड किया, ऐप को देखा या किसी जो है ऐप के वहाँ भेज दिया, उन्होंने उसको डायग्नोज किया और बता दिया कि इसका ये स्प्रे है, तो उसको घर बैठे उसका एक सलूशन जो है उसका मिल गया। तो ये जो ज्ञान है उसको किसान तक ले जाने के लिए इसमें भी एग्रीकल्चर स्टार्टअप यूजिंग डिजिटल प्लेटफार्म, यूजिंग आईसीटी प्लेटफार्म, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें जो हैं अब संभव हो रही हैं, जिससे हमें कॉम्पिटिटिवनेस, एफिशिएंसी, एक्सेस टू मॉडर्न नॉलेज बहुत ज़्यादा इजी होता जा रहा है। एक और चेंज जो ये ज़रूरी कर देती है कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप को हम बढ़ावा दें वो ये है कि पहले हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी थी वो पब्लिक सेक्टर की थी। उसमें बड़े सिंपल 1-2 एलिमेंट थे। आप बीज ले लीजिए, फर्टिलाइज़र अप्लाई करिए, कभी कीड़ा आ गया तो बीमारी के लिए अप्लाई करिए। तो उसको कई लोग कहते हैं कि पहले हमारा एग्रीकल्चर विकास का मॉडल एक बांसुरी मॉडल था कि एक बांसुरी बजाई और लोग एंटरटेन हो गए, या जो समस्या है वो हमने उसको एड्रेस कर लिया। लेकिन आज उसके इतने ज़्यादा पहलू हैं, इसको कई लोग अर्थशास्त्री ऑर्केस्ट्रा मॉडल कहते हैं कि प्रेजेंट मॉडल जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का है वो अकेले बांसुरी बजाने या ढोल बजाने से नहीं होगा, ये ऑर्केस्ट्रा मॉडल है। इसमें हमें शुरू से लेकर कि सबसे बड़ा परिवर्तन तो यहाँ से आता है कि बट टू ग्रो। क्या किसान यदि बाजरा ग्रो कर रहा था तो बाजरा ही ग्रो करता रहे, या यदि वो कोई एक दाल ग्रो करता था दाल ही ग्रो करता रहे? उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? मार्केट को देखकर, उसकी सॉइल कंडीशन को देखकर, उसकी अपनी कैपेसिटी को देखकर, उसके रिसोर्सेज को देखकर, और तब उसे ये बताना, जिसमें मैं एग्रीकल्चर स्टार्टअप के लिए भी ये चैलेंज है कि आप ज़्यादातर इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हाउ टू डू। आपने राइस लगाया है तो राइस से बेस्ट यील्ड क्या लेनी है, लेकिन आपका काम अभी इस चीज़ पे बहुत कम है, क्या राइस आपके लिए बेस्ट है या राइस से बेटर अल्टरनेटिव है। तो ये एक आप जो है नेचुरल रिसोर्स को देखकर, मार्केट को देखकर, फार्मर के करैक्टरिस्टिक्स को देखकर उसको एक प्रोडक्शन प्लान देना, और ये संभव है। पहले हमारे पास टेक्निक होते थे, जब हम शुरू में मैंने कैरियर शुरू किया पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, लीनियर प्रोग्राम के रास्ते एक ऑप्टिमम क्रॉप प्लान बनाना। तो एक क्रॉप प्लान बनाने में हमें 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे, लेकिन अब तो आपके पास कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आपने एक बार जनरेट कर दिया और डेटा की इन किया, विद इन फ्यू सेकंड आपके पास वो सोल्यूशन आ जाता है कि आपका बेस्ट ऑप्शन एक पार्टिकुलर चीज़ को करने के लिए क्या है। फिर उसके बाद दूसरा ये आता है कि बहुत से हमारे फार्मर इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं कि यदि मान लो किसी को कोई किसी बीमारी के लिए इलाज चाहिए, पहला प्रॉब्लम तो यह है कि उस इलाज के लिए वो दुकान वाले के पास जाता है, वो उसे बताता है आप ये स्प्रे करिए। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डायग्नोसिस, उसके रॉन्ग होने के चांसेस बड़े हाई कि वो उसको जो बताता है ठीक है कि नहीं। अब सेकंड प्रोबेबिलिटी के जो उसने बता भी दिया, क्या वो जो पेस्टिसाइड खरीद रहा है वो ऑथेंटिक है कि वो फेक है या डुप्लीकेट है। वो सेकंड उस पर एक लेयर ऑफ अनसर्टेनिटी आ गया कि वो जो करेगा उसको ज़रूरी नहीं है कि उस बीमारी को कंट्रोल करने में सफलता मिले। लेकिन एग्रीकल्चर स्टार्टअप से जो हमारे नए अब टेक्निक आ गए हैं, उनसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेसी बहुत क्लोज हो गई है, मोर देन 90% हो गई है। और यदि अच्छे एग्री स्टार्टअप, रिप्यूटेड स्टार्टअप हैं, तो उसको वो जो फेक चीज़ें हैं, जो ये डुप्लीकेट और सब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, उनसे एक डिफेंस मिलती है, वो एक रिलायबल इनपुट जो है खरीदता है। तो ये प्लानिंग से शुरू होकर सीड में, पेस्टिसाइड में, डायग्नोसिस में, सब जगह आप इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन एग्री स्टार्टअप के थ्रू ला सकते हो। दूसरी स्टेज है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में तो इंडिया में बहुत बदलाव हुआ, लेकिन मैं कई बार कहता हूँ, थिट साहब पंजाब से हैं, कि इवन पंजाब में भी
एग्रीकल्चर मार्केटिंग में एक ही परिवर्तन आया कि पहले फार्मर गाड़ी पे लेकर प्रोड्यूस आता था, अब ट्रैक्टर ट्रॉली पे लेकर आता है। इससे ज़्यादा मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा चेंज लार्ज स्केल पे जो है वो नहीं आई कि क्या मार्केटिंग का तरीका यही है कि ट्राली भरी और लेकर आए, दड़े में माल बेचा और आप उसको छोड़कर चले गए। अब बहुत ऐसे अवसर पैदा हो गए हैं कि जो एक्सेसिव इंटरमीडिएशन है, अननेसेसरली इंटरमीडिएशन है, उसको हम रिमूव करके सीधा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच एक रास्ता बना सकते हैं। लेकिन वो रास्ता बनाने के लिए एक एजेंसी की कम से कम ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे विचार में वो एजेंसियां एफपीओ और एग्री स्टार्टअप हैं। पोस्ट हार्वेस्ट में चाहे वो ई मार्केटिंग हो, जो भी हो, ऐसी संभावनाएं बनी हैं। एक और जो डिमांड साइड पे बहुत बड़ी चेंज आ रही है, जिसमें बहुत बड़े अवसर हैं, वो ये है कि कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे फॉर सर्टेन एट्रीब्यूट फॉर सर्टेन ट्रेड बहुत बढ़ गई है। आज से 20 साल पहले का कंज्यूमर ये डिस्टिंग्विश नहीं करता था मैं कौन सी गेहूं खा रहा हूँ, मैं कौन सी दाल खा रहा हूँ, मैं कौन सी सब्जी खा रहा हूँ, मैं गोभी खा रहा हूँ तो गोभी खा रहा हूँ, गेहूं खा रहा हूँ तो गेहूं खा रहा हूँ। लेकिन अब ज्यों-ज्यों के, क्योंकि ज्ञान का स्रोत सूक्ष्म से सूक्ष्मता की ओर है, जब हम जाते हैं सूक्ष्मता में तो हम वैल्यू चीज़ की डिस्कवर करते हैं कि गेहूं गेहूं ही नहीं है, गेहूं के बहुत किस्में हैं। किसी गेहूं में आयरन हो सकता है, किसी गेहूं में प्रोटीन ज़्यादा हो सकता है, किसी गेहूं में जो है हमारा ग्लूटेन कम हो सकता है। ऐसी बहुत सी एग्जांपल सभी फूड में है। और आज कंज्यूमर की विलिंगनेस के आप मेरे को मेरी चॉइस का फूड, जो एट्रीब्यूट मुझे चाहिए उस एट्रीब्यूट वाला फूड दोगे तो आप मेरे से 2 गुना या 3 गुना प्राइस ले लीजिए, वो उसे देने के लिए तैयार है। लेकिन यदि हमने प्रोड्यूस को मंडी में दड़े के रूप में बेचना है, कंज्यूमर ने आकर खरीदना है, तो ना तो कंज्यूमर उसके लिए प्रीमियम करेगा और ना ही वो प्रीमियम प्रोड्यूसर तक पहुंचेगा। तो यदि हम प्रोड्यूसर को अनेबल करना चाहते हैं कि वो विलिंगनेस टू कंज्यूमर टू पे फॉर सर्टेन क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस जो है उसमें अपनी हिस्सेदारी बनाए कि हमने एक पर्टिकुलर क्वालिटी का प्रोड्यूस आपको दिया, आप हमें प्राइस दें, और कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन है कि मुझे जिस चीज़ की चाहत थी मुझे वो चीज़ मिल गई है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं एक अपर मिडिल इनकम या रिच इनकम क्लास का कंज्यूमर हूँ, मेरा तो 1% भी टोटल एक्सपेंडिचर फूड पे नहीं जाता, क्या फ़र्क पड़ता है यदि 3 गुना प्राइस भी होगी, मेरी को सेटिस्फैक्शन मिल रही है इसको खाने के लिए। तो आज का कंज्यूमर इस तरह की चीज़ों को क्वालिटी प्रोड्यूस, सेफ प्रोड्यूस विद पर्टिकुलर एट्रीब्यूट उसको ढूंढ रहा है। और अकेले उसी से जो अभी फूड एक्सपेंडिचर है कंज्यूमर उसको 2 गुना करने के लिए तैयार है। तो ये एक तरीके हैं कि किसान की इनकम 2 गुना करने के लिए आप कैसे कर सकते हो। तो मेरे विचार से वो जो हमारे स्टैंडर्ड तरीके हैं उससे हमें बड़ी सीमित सक्सेस मिलेगी, लेकिन यह जो नए नए अवसर हो रहे हैं इनमें अपार संभावनाएं इस चीज़ की बनती जा रही हैं कि हम उसको एड्रेस करें। और ये सब चीज़ें आप सब ने सुनी हैं, प्रिसीजन फार्मिंग, अब आपने ये लगाइए वो लगाइए, सेंसर बेस्ड कल्टीवेशन करिए, उसके परिणाम जो है आ रहे हैं। और हम सस्टेनेबिलिटी में भी देखते हैं कि यदि हमने पानी बचाना है, यदि हमने क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना है, तब हमें एफिशिएंसी इंप्रूव करनी पड़ेगी और प्रिसीजन फार्मिंग की ओर हमें जो है जल्दी से जल्दी कदम उठाने पड़ेंगे। अब दूसरे लेवल पे बात आती है एफपीओ की। अब सबको पता है कि हमारे आज से 5 साल पहले 86% किसान स्मॉल और मार्जिनल थे, अब तक शायद 90% हो गए होंगे, और आधे से ज़्यादा 1 हेक्टेयर से कम में खेती करते हैं। जो किसान 1 हेक्टेयर या 2-2.5 एकड़ में खेती करता है वो कितनी ही बेस्ट यील्ड बीट की ले ले, कितनी बेस्ट यील्ड राइस की ले ले, तब भी आप देखोगे कि वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होगा। लेकिन यदि आप उसको इस तरह के अवसर दे सकें कि यदि आप वेजिटेबल ग्रो कर लो तो आपकी इनकम इससे 4 गुना हो जाएगी, जो आपको सीरियल से मिलती है 5 गुना हो जाएगी। इसका मतलब है कि 2 हेक्टेयर वाला छोटा फार्मर इतनी इनकम ले सकता है अपना एक प्रोडक्शन प्लान चेंज करके, तो 10 एकड़ वाला फार्मर ले सकता है।
तो आपने जो उसका साइज डिसेबिलिटी था उसको 5 गुना आपने उसकी एबिलिटी इंक्रीज कर दी कि 2 एकड़ वाला 10 एकड़ की रिटर्न ले सकता है। और ऐसा हो रहा है, ऐसा पॉकेट्स में संभव है और काफ़ी जगह इस तरह की चीज़ें जो हैं हो रही हैं और किसान उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन वो अकेला किसान नहीं उठा सकता, क्योंकि अकेले किसी एग्री स्टार्टअप को भी यदि कंटेक्ट करना होगा फार्मर को, उसका एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, इंडिविजुअल को वो कंटेक्ट करेगा बड़ा कॉस्टली हो जाएगा। तो यदि वो एफपीओ से डील करते हैं 400-500 फार्मर की, उसका कॉस्ट कम हो गया, स्केल मिल गई, वॉल्यूम मिल गया, बार्गेनिंग पावर दोनों साइड पे स्ट्रेंथन हो गई। तो इस तरह से एग्रीकल्चर स्टार्टअप एक 500 की एफपीओ के 500 फार्मर को रिटेलर से, मैन्युफैक्चरर से या डायरेक्टली कंज्यूमर से लिंक करता है और ऐसा हो रहा है। आज ही मैं मिला हूँ कई लोगों से जो इस डायरेक्शन में ऑलरेडी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमारा स्टेट लेवल का भी इस तरह का एक्सपीरियंस है और नेशनल लेवल पे भी इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। मैं गोयल जी से शेयर कर रहा था कि 15वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में मैंने एक ग्राफ डाला था देश की अटेंशन ड्रा करने के लिए कि यदि हम देश की एग्रीकल्चर को 5 सेगमेंट में बांटते हैं कि सबसे पहला सेगमेंट जो फुल्ली गवर्नमेंट सपोर्टेड है, जिसमें टॉप पे राइस और बीट आते हैं, उसके साथ थोड़ा थोड़ा कॉटन, पल्सेस और ऑयल सीड जुड़ जाते हैं, जिनको हम एमएसपी क्रॉप कह सकते हैं। दूसरा सेगमेंट हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का आता है, फ्रूट और वेजिटेबल का। तीसरा सेगमेंट हमारा लाइव स्टॉक का आता है, उसमें डेयरी को चाहे ले लो, चाहे एग्स को ले लो, मीट को ले लो, और एक और सेगमेंट फिशरी का आता है। तो ये सेगमेंट जो हैं, इनमें यदि हम देखें कि ग्रोथ रेट क्या रहा है और गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या रहा है, जिस सेगमेंट को जितनी ज़्यादा सपोर्ट गवर्नमेंट की है उसकी उतनी ही कम ग्रोथ है, जिस सेगमेंट को जितनी कम सपोर्ट और इंटरवेंशन गवर्नमेंट की है उसकी उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ रेट है। ये ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि डिमांड ड्रिवन ग्रोथ की पावर टू स्टिमुलेट ग्रोथ इज मैनी टाइम्स हायर देन पावर ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट टू स्टिमुलेट ग्रोथ। क्योंकि फिशरी की डिमांड है, फिशरी को डिमांड सपोर्ट करता है, दूध की डिमांड है, एग की डिमांड है, मिल्क, फ्रूट और वेजिटेबल की ज़्यादा डिमांड है। तो इसलिए जो यदि हम गवर्नमेंट भी सपोर्ट अपनी दे, लेकिन ऐसे ना करें कि जो डिमांड साइड फैक्टर हैं उनको स्टाइफल कर दे, उनको डिल्यूट कर दे या उनको फ्रस्ट्रेट कर दे। तो हमें ये जो डिमांड साइड पावर है फार्मर की इनकम इंक्रीज करने की, इसे हार्नेस करना चाहिए। और इसे हार्नेस करने के लिए मुझे ये लग रहा है कि 2 उसके बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एग्री स्टार्टअप और एफपीओ। और सरकार की ड्यूटी, माननीय कृषि मंत्री जी हम महाराष्ट्र के बैठे हैं, फैसिलिटेट एनवायरनमेंट इनके लिए पैदा करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके रास्ते में रुकावट ना पैदा करना। और महाराष्ट्र एक अग्रणी प्रदेश रहा है, यहाँ चाहे इरिगेशन 20-21% है, लेकिन फिर भी हॉर्टिकल्चर इतना अच्छा हो रहा है, पॉकेट्स में प्रॉस्पेरिटी है, वो सारी चीज़ें हैं। मार्केट रिफॉर्म सबसे पहले इसी प्रदेश से शुरू हुए थे। और मैंने 2016 या 17 में जब स्टेट की रैंकिंग की थी मार्केट रिफॉर्म और फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म, तो उसमें महाराष्ट्र टॉप पे आया था उस समय भी। लेकिन बहुत सा क्षेत्र आपका ऐसा है कि जहाँ नहीं है। तो और अभी भी नीति योग, अभी जब से नई सरकार आई है हमने नया नेगोशिएशन शुरू किया है। हम नीति टाइप का इंस्टीट्यूशन चाहते हैं महाराष्ट्र में भी बने, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नाम भी प्रपोज कर दिया है। ज़्यादा बताना शायद उचित नहीं होगा, लेकिन हमारी 2-3 मीटिंगें इनके साथ हुई हैं कि कैसे, क्योंकि पावर ऑफ आइडिया मच स्ट्रॉन्गर देन पावर ऑफ जो मनी होता है। तो आइडियाज़ की पावर को अब हम एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करें और बिना मतलब की जो रुकावटें हैं हम उनको ना वहाँ पर रखें। तो लास्ट में मैं एक आपको हिस्ट्री का इंसिडेंट बताकर कंक्लूड करूँगा कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन या सपोर्ट ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए लाभदायक हो, वो रुकावट कैसे बन सकती है। जब सिकंदर दुनिया को जीत कर वापस ग्रीक में गए
तो ग्रीक में एक बड़े यूनिक किस्म के फिलोसफर थे, शायद डायोनीस उनका नाम था। तो बड़ा उनका एक फिलोसफर थे, वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो सिकंदर की यह इच्छा हुई कि मैं इतनी बड़ी दुनिया को जीत के आया हूँ, तो मैं डायोनीस के पास जाता हूँ, क्योंकि किसी ने उन्हें बताया कि वो रात एक पाइपलाइन में इतनी ठंड में सोए हुए थे। तो उनके रहने के तौर तरीके बड़े अलग थे। पढ़ना जिनको इंटरेस्ट है डायोनीस के बारे में, जो ग्रीक फिलोसफर थे। तो सिकंदर को ये इच्छा हुई कि इतना बड़ा फिलोसफर मेरे देश का, वो पाइप में सोता है, उसके पास कपड़े भी प्रॉपर नहीं है, ऐसे है। तो वो गए, तो उसको जाकर पूछते हैं कि मैं सारी दुनिया जीत कर आया हूँ। तो सर्दियों का मौसम था, बड़ी अच्छी धूप थी, तो वो धूप सेक रहे थे डायोनीस। तो सिकंदर जाकर उसके पूछते हैं कि मिस्टर डायोनीस, can I do something for you? He said, certainly. He said, how? He said, by letting the sun come on me. So, government should let the sun come on people. It should not become obstruction in the way of sun and plants. Thank you. Thanks so much, sir, for sharing with us the knowledge and wisdom. अन्नदाता सुखी भव, ऐसा हम कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है। पर वाकई में अन्नदाता को, कृषि व्यवसाय को, एग्रीकल्चर बिजनेस से जुड़े सभी को सुख और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर विचार विमर्श करने हेतु 2 दिन के इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हमें बेहद खुशी है कि हमारे इस कॉन्फ्रेंस में हमारे अतिथिगण यहाँ पर मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आदरणीय खोसला जी से कि वे स्मृति चिन्ह देकर हमारे प्रमुख अतिथियों का सम्मान करें। Director General of BCCI Sandeep Khosla, who has 33 years overall experience in publishing industry and 20 plus years of experience in leadership role, I request him to felicitate our chief guests with a special memento. Before we move ahead, I would like to say something about this memento. ये जो स्मृति चिन्ह है वो वाकई में अपने आप में एक खूबी है। This is a special memento having the image of श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। आदरणीय कृषी मंत्री का सम्मान हो रहा है। सांगायला अतिशय आनंद होतोय की मूळ डच चित्रकाराने काढलेलं हे चित्र आहे आणि त्याच्यावर टेपेस्ट्रीने धाग्यांनी अतिशय सुंदर असं काम केलेलं आहे। आणि हे केवळ धागे नाहीयेत, तर हे धागे आहेत महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रति आदराचे, कृतज्ञतेचे आणि शतकानुशतके त्यांच्याशी जोडले गेलेल्या ऋणानुबंधांचे। I also request Khosla ji to felicitate Honorable Ramesh Chand ji. Thank you so much. Thank you so much, everyone. I request all the dignitaries to take their seats. Thank you. महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब हे कार्यव्यस्ततेमुळे आज इथे येऊ शकलेले नाहीयेत, पण त्यांनी आवर्जून त्यांचा संदेश इथे पाठवलेला आहे, त्याचं वाचन मी करते। राज्य के कृषि मंत्री श्री अब्दुल सत्तार, नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद, बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के डीजी श्री संदीप खोसला, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को बधाई देता हूँ। मुझे खुशी है, ये पहली बार है जब विभिन्न राज्यों के 5 बड़े एफपीओज के सीईओ एक मंच साझा कर रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद यहाँ उपस्थित हैं। पिछले महीने ही हमारी नीति आयोग से बैठक हुई थी। आयोग का पूरा मार्गदर्शन हमें मिलता है।
कोरोना संकट के बीच देश में कई तरह की चुनौतियां थी। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसी संस्था इस अभियान में अपना सक्रिय योगदान दे रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय है। उद्योग और कारोबार को आसान बनाने, छोटे कारोबारों को लोन देने, रोजगार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कई तरह के फैसले किए हैं। वैसे ही किसानों के लिए भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने अभी हाल ही में सत्ता संभाली है, अभी 3 माह ही हुए हैं, लेकिन सामान्य लोगों के हित के बहुत सारे निर्णय हमने लिए हैं। किसान ये हमारे राज्य के पूरे नियोजन का केंद्र बिंदु है। कोविड काल में राज्य के कृषि क्षेत्र का योगदान पूरे देश में सराहनीय था। कोविड की वजह से पूरी दुनिया रुक गई थी, लेकिन किसान काम कर रहा था, अनाज उग रहा था। गए कुछ सालों से खेती को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिशें शुरू हैं। परसों मैंने प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि के अभियान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा आयोजित वीसी में हिस्सा लिया था। आदिवासी क्षेत्र सहित राज्य का 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्राकृतिक खेती के अधीन है और जैविक खेती को हम बढ़ावा भी दे रहे हैं। राज्य में रासायनिक दवाओं और फर्टिलाइजर्स के उपयोग को कम करने के लिए विज्ञान आधारित जैविक खेती के प्रयास चल रहे हैं। राज्य सरकार प्राकृतिक खेती के तरीकों का इस्तेमाल बढ़ाने की अपील किसानों से कर रही है। इससे लागत कम होगी और अधिक लाभदायक खेती होने में मदद होगी। इससे छोटे किसानों को फायदा होगा। किसान कंपनी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न उपाय और प्रावधान किए जा रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार प्रति 1 लाख किसानों के लिए लगभग 6 किसान उत्पादक कंपनियां स्थापित की गई हैं। किसान उत्पादक कंपनियों की कुल संख्या का 45% महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है। कुछ साल पहले कई कृषि उत्पादक कंपनियों में ह्यूमन रिसोर्स का प्रबंध करने के लिए कौशल भी कम होती थी और सदस्यता बनाए रखने और बढ़ाने में कमी थी। इसी तरह कृषि उत्पादों के स्टॉक और मार्केटिंग के व्यवसाय में किसान सदस्यों को पूरी तरह से शामिल नहीं किया जाता था। इन सभी कारणों से कुछ किसान उत्पादक कंपनियां लंबे समय तक प्रगति नहीं कर सकीं। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 10,000 किसान उत्पादक कंपनियों और कृषि अवसंरचना कोष के निर्माण और सुदृढ़ीकरण जैसी योजनाओं की घोषणा की। उसका अवश्य फायदा राज्य में सभी किसानों को होगा। आज मुझे लगता है कि महिला कृषि उत्पादक कंपनियों के निर्माण को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, क्योंकि देश में कृषि मजदूरों की संख्या में महिलाओं की संख्या 37% है, लेकिन वर्तमान में कुल कृषि उत्पादक कंपनियों में से केवल 2.4% महिलाओं को कृषि उत्पादक कंपनियां हैं। मैं अवश्य बताना चाहूँगा कि वर्तमान में विश्व बैंक फंडिंग की बाला साहब ठाकरे कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना स्मार्ट के तहत राज्य को कोंकण और नागपुर विभागों में 400 महिला किसान उत्पादक कंपनियां बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले 2.5 साल में हम इस प्रोजेक्ट पर सिर्फ 15 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए। इस परियोजना को गति देने के लिए इसका एक शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। विश्व बैंक के अधिकारी हमें पैसे की कमी नहीं होगी ऐसा आश्वस्त किया है।
इस परियोजना से किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और फसल मूल्य श्रृंखला को बहुत लाभ होगा। एक किसान उत्पादक कंपनी को पूरे वर्ष व्यवसाय करने के लिए एक से अधिक खेतों पर काम करने की आवश्यकता होती है, ऐसा मुझे लगता है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक रिपोर्ट हमें दे, जिसका अभ्यास कर हम FPO और एग्रीकल्चर स्टार्टअप के लिए पर्याप्त सुविधा देने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के बारे में गंभीरता से कुछ कदम उठाएंगे। व्यापार के नए अवसर तलाशने के लिए भी हम अपनी सहायता कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। एकनाथ शिंदे, माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य। धन्यवाद सर. आज ते इथे उपस्थित नाही आहेत, पण नक्कीच त्यांचा जो महत्त्वपूर्ण जो संदेश आहे जो त्यांनी पाठवलेला आहे आणि तो आज या निमित्ताने सर्वांपर्यंत पोहोचलेला आहे, ही गोष्ट मला वाटतं आपल्या सगळ्यांसाठी नक्कीच आश्वासक आहे. Moving ahead, today we are grateful to have with us Honorable Agriculture Minister of Maharashtra, Shri Abdulji Sattar Sahib, who has worked immensely in all areas of agriculture and rural development. मातीशी नाळ असलेलं हे व्यक्तिमत्व ज्यांनी महाराष्ट्राच्या गाव खेड्यामधील कृषी क्षेत्रातील प्रत्येकाचे प्रश्न समजून घेतलेले आहेत आणि बळीराजाच्या हितासाठी ते सदैव कार्यरत असतात. महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री माननीय नामदार अब्दुलजी सत्तार साहेब यांना आपले मौलिक विचार व्यक्त करण्याची मी विनंती करते. माननीय अब्दुलजी सत्तार साहेब. आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आमचे ज्येष्ठ वरिष्ठ IAS अधिकारी सुधीर कुमारजी गोयल, ज्यांनी आपल्याला अनमोल मार्गदर्शन केला, रमेश चांदजी, नीति आयोगाचे सदस्य संदीपजी, राजनजी, देडियाजी, सर्व इथे जमलेले विविध कंपन्यातून, विविध क्षेत्रातून आणि विशेषतः आपला हा कार्यक्रम घेण्याचा उद्देश आपल्या राज्यामधला शेतकरी, त्याच्या मालावर होणारी प्रक्रिया, त्याला मिळणारा मार्केट आणि त्याला जोडून आपण काही करू शकतो का, यासाठी खरं म्हणजे रमेशजींनी एका सुंदर शब्दामध्ये त्याचं वर्णन केला. हिंदीमध्ये होता, पण मराठी माणसाला हिंदीमध्ये बोलतानाही मजा येते. मी हिंदी बोलणारा होतो पहिले, आता मलाही हिंदी बोलण्यासाठी अडचण येते. परंतु आज या व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय सर्व सभासद, BCCIचे सर्व जमलेले माझे मित्रांनो, आज मला आनंद होतोय का स्वतः नैसर्गिक या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी आपल्याला सर्वाला, सगळ्यांना अन्न पुरवण्याचा, बळीराजाचा अभिवादन करण्याला आपल्या सोबत संवाद साधणं सुरू करतोय. कारण की आपला शेतकरी जो आहे, या शेतकऱ्याच्या अनेक अडचणी आहेत. मी कृषी मंत्री झाल्यानंतर त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी एक दिवस बळीराजा सोबत आमचे कलेक्टर, कमिशनर, तहसीलदार, BDO किंवा कृषी अधिकारी तर कृषी सहाय्यकापर्यंत एक दिवस आपण त्या शेतकरी बांधवाला निराश होण्याची कारण शोधावी लागल. त्याला जास्त खर्च येतो, उत्पन्न कमी येतो, त्यासाठी नवीन टेक्नॉलॉजीच्या जी कार्यपद्धत आहे ही शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवणं फार आवश्यक आहे. त्यासाठी आमचा विभाग, आमचे विद्यापीठ, आमचे सायंटिस्ट, आमचे प्रोफेसर, आमची लोक अत्याधुनिक पद्धतीची बी बियाणे कसे येतील आणि कमी दिवसामध्ये जास्त उत्पन्न देणारे, कमी खर्चामध्ये जास्त उत्पन्न घेणारे आणि त्यासोबत त्यांच्या मालावर प्रक्रिया करणारे आपल्यासारखे उद्योजक,
ज्यांनी देशभर जगभर आपला असलेला तुमचा अनुभव आपल्या शेतकऱ्याला, आपला महाराष्ट्र, आपला जिल्हा जास्तीत जास्त आजकाल जरा थोडाफार मोबाईलच्या माध्यमातून आपल्यापेक्षा जास्त समजण्याचा प्रयत्न शेतकरी करत नाही, पण शेतकऱ्याचा नातू, शेतकऱ्याचा मुलाचा मुलगा तो त्याच्यामध्ये हुशार असल्या कारणाने टकटक टकटक बोलतो, बाबा असं आहे, बाबा तसं आहे, बाबा हे आहे, बाबा ते आहे. अशा पद्धतीने थोडंफार मला जे फरक दिसतोय या बळीराजामध्ये हा निश्चित आहे. परंतु याच्यासाठी अजून काही चालना देण्यासाठी आता नीती आयोगासारखा महत्वाची कामं ही जी आहे आपले रमेशजी चांदजी यांच्याकडे आहे आणि नीती आयोगाचा मुख्यमंत्री महोदयांनी मला त्यावेळेस बोलले का मी पंतप्रधान महोदयांच्या नीती आयोगाच्या मीटिंगला गेलो, त्या ठिकाणची परिस्थिती, नीती आयोगाचे डायरेक्शन, तेल सारखा आपल्याकडे काळ होता का लाखो तेल घाणे होते आणि गावामध्ये तेल तयार होत होता. आज अशी परिस्थिती आहे का 70% तेल आम्हाला बाहेरून मागावं लागतं. त्यासाठी आपल्या देशामध्ये जी काही अडचण निर्माण होती, शेवटी आपली करन्सी बाहेर गेल्यानंतर त्याचे परिणाम देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर पडतो, याच्यामध्ये कुठे शंका नाही. यासाठी आपल्याला काही प्रयोग करता येईल का? आम्हाला काही आमच्या डिपार्टमेंटच्या वतीने आम्ही कालच मीटिंग घेतली, 7 तास आमचे सर्व विभागाचे अधिकारी त्यांची मिटिंगा घेऊन मुख्यमंत्री महोदयाचा आदेश आहे का आपला शेतकरी सक्षम व्हायला पाहिजे. शेतकरी एक पिकाच्या ऐवजी 2 पिकं घेणारा व्हायला पाहिजे. दाण्याने पाणी देण्याचे दिवस गेले. आता ठिबक, स्प्रिंकलर, वॉटर गन या नव्या टेक्नॉलॉजीने कदाचित शेती केली तर त्या शेतकरी बांधवाला आपल्या शेतामध्ये आंतरपीक घेता येईल का? आंतरपीक घेताना पूर्वीचे पहा तुम्ही, उडदाची डाळ असेल, मुंगाची डाळ असेल, काही छोटे छोटे पीक असेल ते आपण घेत होतो. आता शेतकरी त्याच्यापासून थोडा दूर चाललाय. मग त्याच्या उत्पन्नामध्ये घट होती. उत्पन्नामध्ये घट झाली का तो निराश होतो. निराश झाला का मग टोकाची भूमिका आत्महत्यासारखा हत्यार जो काही त्याचा परिवार उद्ध्वस्त करून टाकतो. अशा परिस्थितीमध्ये आपण आपल्या ज्या कंपन्या आहे, या मुंबईचे जे प्रमुख इथे व्यापारी आहेत, या चालना देणारे अनेक कंपन्याचे CEO आहेत, मालक आहेत, सर्वांना माझी विनंती राहील का आपल्याला हे जे नवीन डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून काही करता येईल का? आपण जे करू लागलो त्याला भविष्यामध्ये काही रूपरेषा आणि दिशा द्यायची असेल तर संबंधित फार्मा प्रोडक्शन संबंधित कंपन्या ज्या आहेत यांना आपण सरकारकडून काय मदत करू शकता का? परंतु इतका सुंदर शब्दामध्ये रमेशजीने सांगितलं की सरकार हा किती सपोर्ट करेल याची लिमिट असते, परंतु प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने द्यायला पाहिजे. मी हे बोलणार नाही का मी कृषी मंत्री आहे आणि सरकारच्या वतीने महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीमधून तुमच्यासाठी किंवा शेतकऱ्यासाठी हे मोठ्या प्रमाणावर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयाचं नियोजन आहे का आपण यावेळेस या बजेटमध्ये शेतकऱ्याचा बजेट म्हणून, बळीराजाचा बजेट म्हणून त्याला झुकता माप कसा देता येईल याच्यावर विचार महाराष्ट्र सरकारचा चालू आहे. आता मुख्यमंत्री महोदयाच्या संदेशामध्ये आपण पाहिलं का त्यांचे एक सामान्य शेतकरी कुटुंबाचा माणूस ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होतो तर शेतकऱ्याची सर्व जाणीव त्यांना आहे. शेतकऱ्यांच्या बद्दल अनेक त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेणं, त्याच्यावर उपाययोजना करणं, सरकारच्या वतीने काय करता येईल, देशामध्ये असलेला नरेंद्र मोदी साहेब सारखा पंतप्रधान या देशाला लाभलेला आहे, त्यांच्या माध्यमातून आपल्या राज्याला अधिकची मदत कशी मिळेल, हे जे बसलेले अनेक अधिकारी आहेत याने अनेक वर्ष आपल्या त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या प्रयत्नाने त्यांनी जरूर प्रयत्न केला, परंतु सर्वांना थोडा थोडा खारीचा वाटा आपण मदत केली तर निश्चित आपण शेतकऱ्याला भविष्यामध्ये सक्षम करण्यासाठी मदत करू शकतो. आपण इथाची एकंदरीत परिस्थिती पाहिली तर आपल्याकडं एक जमाना होता, एकूण घरगुती उत्पादनाची जी GDP होती यांचा वाटा आता 12% इतका राहिलेला आहे. एक काळ होता का 50% आपला त्यांचा वाटा होता. आज ती परिस्थिती नाहीये. लोकसंख्येच्या उत्पन्नाचे कसं आहे, एक काळ होता की त्या काळामध्ये जीवनाला अन्नधान्य नव्हतं. त्यावेळेस गोयलजी आपण परेशानी पाहिलेली आहे. त्यावेळेस आपण रासायनिक खताचा वापर केला किंवा अजून अत्याधुनिक पद्धतीचे नवीन बी बियाणे आणले, व्हरायटी आणले आणि उत्पन्न वाढवलं. परंतु उत्पन्न वाढवल्यानंतर काही परिणाम आपल्याला पंजाबमध्ये किंवा हरियाणामध्ये पाहायला मिळतात का मोठ्या प्रमाणावर कॅन्सरचे पेशंट त्या ठिकाणी राहतात. त्यासाठी प्राईम मिनिस्टर महोदयांनी आणि अमित शहा साहेबांनी निर्णय घेतला की नैसर्गिक शेती याच्याकडेही आम्हाला शेतकऱ्याला वळवावं लागेल. शेतकऱ्याला त्या पद्धतीने त्याला
मदत करावं लागेल. आणि त्याला मदत केली तर त्याचं उत्पन्न कमी असलं तरी भाव जास्त आहे. आपण ज्या शेतीमध्ये काही लोक पूर्वी नवीन हायब्रिड शेती आली, हायब्रिड बी बियाणे आले, हायब्रिड खाऊ लागले, त्याला रासायनिक, त्याला औषधाचा फवारा आणि त्याचं वाढ आणि हे सर्व पाहिलं तर त्या काळाची गरज होती. परंतु आता आपल्याला परत नैसर्गिक शेतीवर यावं लागल आणि 10 लाख हेक्टर पर्यंत आपला टार्गेट झालेला आहे. 25 लाख हेक्टर करायचं आहे. असाच मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री मोदयांनी जी ऑनलाईन मिटिंग त्यांची अमित शहा साहेबांसोबत झाली, त्यांनी प्रॉमिस केलं, त्यांना वचन दिलं की ठीक आहे मी याला चालना देऊ आमच्या राज्यामध्ये. परंतु एकट्याने चालना होणार नाही. त्यांचा जो माल ते पिकवतात त्या पिकवलेल्या मालाला तुम्हाला मार्केटिंग करावं लागेल, तुम्हाला त्याच्या भावाच्या बद्दल चिंता व्यक्त करावं लागेल. त्याचा उत्पन्न कमी बी आला, नैसर्गिक शेतीचा उत्पन्न कमी येणार याच्यामध्ये काही शंका नाही. परंतु तो आपल्या शरीरासाठी जो स्लो पॉइझन म्हणून आपण आजचं अन्नधान्य खाऊ लागलो, त्याला थांबवण्याचं काम, त्याला रोखण्याचं काम आपण मोठ्या प्रमाणावर करू शकतो. आपण इथे जमलेले इतके तज्ञ आहेत, इतके मोठ्या व्यवहारामध्ये, व्यवसायामध्ये, व्यापारामध्ये शेतकऱ्यांच्या ज्या कंपन्या आपल्याला संबंधित आहे त्याला चालना देण्याचं काम आपल्याला करायचं आहे. आणि पुढील काळात भारतीय मसाले असेल, भाज्या असेल, फळं असेल, ह्या छोट्या गोष्टी आहेत. परंतु आपण शेतकऱ्याच्या मालाला, आता आमच्याकडे जालना आहे, जालनाला ड्राय पोर्ट होऊ लागला. तो ड्राय पोर्ट झाला का तिथून आमचा मराठवाड्याचा माल तयार झाला का लगेच डायरेक्ट मुंबईला येईल. मुंबईपासून गेला का कुठेतरी श्रीलंका असेल किंवा बांगलादेश असेल इथपर्यंतही गेला. इथेही त्याची त्या ठिकाणी त्याला आम्ही नितीन गडकरी साहेबांची माझी मीटिंग नागपूरला झाली आणि नागपूरला त्यांनी सुचवलेल्या अनेक सूचना, त्याच्यावर आपण काय करू शकतो, कशा पद्धतीने करू शकतो याचाही विचार करण्यासाठी आपल्या राज्यामधल्या एकंदरीत आपण पाहिलं तर 1984 मध्ये 5.5 लाख तेलाचे घाणे होते. 5.5 लाख. आज किती आहे? 50,000. म्हणजे तेल आपल्याला बाहेरून मागवायचं. मी तेलावर जे बोलू लागलो त्यासाठी आमच्या बी ज्या विद्यापीठ आहेत त्याच ठिकाणी असलेले तंत्रज्ञान करणारे किंवा प्रोफेसर असतील किंवा सायंटिस्ट असतील यांच्या माध्यमातून काही आपल्याला करता येईल का, त्याच्याबद्दलही आमचा मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न आहे. सरकारच्या वतीने आपले जे छोटे उद्योग करणारे किंवा फार्मर कंपनी आहेत यांना काही चालना देता येईल का, यांना काही सपोर्ट करता येईल का. यांना सपोर्ट केल्यानंतर शेतकऱ्याला आपोआप सपोर्ट होणार. फक्त एकट्या शेतकऱ्याला सपोर्ट देऊन चालणार नाही. शेतकरी जो माल पिकवतो त्याच्यावर जे प्रक्रिया करतात या लोकांनाही मार्केटमध्ये पुढे व्यवसाय करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने काही मदत करता येईल का याच्याबद्दलही मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांशी मी बोललो. फक्त एकच बाजू नाही, शेतकऱ्याला मदत करायची, शेतकऱ्याला साधन द्यायची, ट्रॅक्टर द्यायचे, अवजारं द्यायची किंवा बी बियाणे कमी भावामध्ये द्यायची, स्वस्त द्यायची, हा एकटा मुद्दा नाही. पण त्यांनी जे माल पिकवलं त्याला विकण्यासाठी जे मार्केट पाहिजे त्याची मार्केटिंग करायला पाहिजे. देशामध्ये असेल, विदेशामध्ये असेल, राज्यामध्ये असेल, आपल्यासारख्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर करू शकतात. की आपण दोन्ही दृष्टिकोन आहे. शेतकरी बांधव बी जिवंत राहायला पाहिजे, कंपन्याही व्यवसाय करायला पाहिजे, त्याच्या मालाला चांगला भाव बी मिळाला पाहिजे आणि भविष्यामध्ये त्याच्या अडीअडचणी ज्या असतील, इथे बसलेले हे 5ही लोक हे माझ्यापेक्षा कितीतरी पटीने हुशार आहे. कारण की याचं पूर्ण आयुष्य आम्हाला कसं असतं का, एक सरकार आला का त्यावेळेस एक खाता मिळतो, दुसरा सरकार आला दुसरा खाता दिला जातो. तसं गोयल साहेब बी तसेच होते. ज्यावेळेस अधिकारी होते, कलेक्टर होते, कमिशनर होते किंवा सेक्रेटरी होते, चीफ सेक्रेटरीच्या म्हणजे यांनी इतकं काम केलेलं आहे की त्यांचा काम आपण पाहिला तर मोठ्या प्रमाणावर आज नीति आयोगाच्या माध्यमातून चंद्राजी जे काम करू लागले, म्हणजे आप जो काम करते हैं उस काम की सारे देश भर में दुनिया के गिने चुने लोगों में का एक टैलेंट ब्रिलियंट आदमी अपने पास आया. ये मेरे जैसे एक कार्यकर्ता का भाग्य है कि मुझे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि आप उस मीटिंग को जाओ, उनका मार्गदर्शन लो, वो किस तरह से उनका जो विजन है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी जो आइडिया है, वो आइडिया के हिसाब से महाराष्ट्र क्या कर सकता है, महाराष्ट्र ने क्या करना चाहिए, महाराष्ट्र का किसान सक्षम होने के लिए, महाराष्ट्र के किसान के ऊपर जो प्रक्रिया करने वाली हमारी कंपनियां हैं, 4000 कंपनियां से ज्यादा हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुए हैं,
उसकी अमलबजावनी करते समय उत्तर प्रदेश हमारे से थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन महाराष्ट्र का यहाँ का किसान जो बड़े पैमाने के ऊपर गन्ना होगा, क्यों चावल होंगे या फिर मक्का होगी, कपास होगा, ऐसे छोटे छोटे, अभी तो फल फ्रूट की तरफ भी बड़े पैमाने के ऊपर जा रहा है, उसके लिए भी हम कुछ कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपका मार्गदर्शन उसके लिए बहुत हमको अनमोल है। नीति आयोग कोई छोटी चीज नहीं है, देश का सारा दुनिया से कनेक्टिविटी जुड़ा हुआ एक संस्था है, उसके माध्यम से मिलने वाली मदद, उसके माध्यम से हमारे राज्यों को मिलने वाली ताकत और उसको जोड़ने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी और प्राइम मिनिस्टर साहब या अमित शाह साहब होंगे या हमारे चंद्रा जी होंगे, सभी यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, ये महाराष्ट्र के अंदर हमको किसान को सक्षम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। किसान का जो माल है, बहुत इतनी चीजें हैं कि हमने कितने भी बोले तो वक्त इतना नहीं है, क्योंकि आपको भी और भी आपका ये सेशन 2 दिन चलने वाला है और ये लगातार टप्पे टप्पे से आपको ये सारी चीजें बताना है, सारी चीजें लोगों तक ले जाना है और सारी चीजों का इस्तेमाल तुमने करने के बाद हमको जो आप आइडिया देंगे उसकी अमलबजावनी महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के हमारा पूरा कृषि विभाग इसके अंदर तंतोतंत कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा, उसको यशस्वी करेगा और निश्चित इससे हमारे राज्य का जो किसान है वो सक्षम होना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा रहेगी। हमारे वहाँ के ये उद्योग करने वाले लोग हैं वो भी सक्षम होना चाहिए, उनके माध्यम से किसान को राहत मिलना चाहिए, किसान के माल को सही भाव मिलना चाहिए। ये सारी चीजें छोटी छोटी है, लेकिन हमको जूनी पुरानी सिस्टम भी बदलना होगी और वो सिस्टम बदलने के लिए आज दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे राज्य में क्या चल रहा है, राज्य के अलग अलग भाग है, आदिवासी भाग अलग है, मेलघाट में जाएंगे तो वहाँ की परिस्थिति अलग है, उसके बाद में हम थोड़ा नीचे आएंगे तो नागपुर विभाग की साइड उधर के लोगों की परिस्थिति अलग है, मराठवाड़ा अलग है, उत्तर महाराष्ट्र अलग है, पश्चिम महाराष्ट्र अलग है, कोकण अलग है, ये अलग अलग एरियो में अलग अलग किसान जो अपनी फसलें लेता है, जो हमारा पीक लेता है, जो बनाता है, जो तैयार करता है, आपके माध्यम से उसको मार्केटिंग मिलती है, मार्केट के तौर तरीके से उसको 2 रुपए थोड़ा सिलक भाव मिलना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा रहती है। और ये सारी अपेक्षाएं आज हमको थोड़ी देर में तो समझना इतना आसान नहीं है, हमारे अधिकारी भी कुछ यहाँ के बैठे, उनका काम आपका सब कुछ सुनना, उसके साथ हमारे पास साथ बैठना और हमको बैठ के मुख्यमंत्री जी के पास बैठ के इसके ऊपर निर्णय लेना कि ताकि ऐसी जो सम्मेलनें होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, ऐसा जो हमारे पास बड़े पैमाने पे इतने लोग यहाँ जब आते हैं तो इनकी भी अपेक्षा रहती है कि हमको सरकार के अंदर तुमको क्या दुश्वारियां है, तुमको क्या तकलीफ है, तुमको क्या प्रॉब्लम आते हैं, उसके बीच में का रास्ता क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होते हुए सरकार की तरफ से क्या मदद मिलना चाहिए। तुम जो किसान को मदद करते हैं, किसान के माल को मार्केटिंग करके देते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ किसान ऐसे है कि अगर घी लिए तो सब बहू लेते हैं, कुछ लोगों ने अगर भात लिए तो चावल ही लेते हैं, कुछ लोगों ने कपास लिए तो सब लोग कपास ही लेते हैं। और इसलिए अगर देश भर में, दुनिया भर में अलग अलग राज्यों की, अलग अलग देशों की अलग अलग डिमांड रहती है और वो कम ज्यादा हो गई तो फिर भाव गिर जाते हैं। एक बार भाव गिर गए तो फिर उसको वो किसान को ही उसका सब चीज, हमारे वहाँ के कुछ किसान भाई, मैं गए साल में मुझे अच्छी तरह याद है 10,000 साढ़े 10,000 तक कपास का भाव हुआ, वो बोले 11.5-12 तक जाएंगे। मैं बोला देखो अब उसका अंतिम समय आ गया, उसको देना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने घर में रखा और घर में रखने के बाद में फिर वो पीला हो गया, फिर उसकी वो क्वालिटी जो है वो कितनी गिर जाती है, इसका दूसरे साल आधे भाव में बेचना पड़ा। तो ऐसा कभी कभी किसान का जजमेंट हो जाता है, लेकिन आप लोगों को दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, कितनी जगहों के ऊपर किसान का माल कौन से एरिया से कितना आने वाला है, उसका छोटा बड़ा हमारा विभाग की तरफ पूरा डायग्नोस रहता है, पूरी उसकी मालूमात रहती है, उसके ऊपर उपाय योजना काढ़ी जाती है। और वो उपाय योजना के लिए जो किसान का मेन हमारा मकसद जो है, अभी सही मायनों में कृषि संशोधन का परिणाम काफी धीरे धीरे चल रहा है, वो भी इतना फास्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। परिवर्तन जरूर है, आपके माध्यम से, नीति आयोग के माध्यम से आगे चल के उससे सही आपकी सोच, जो आपके विचार है
वो आपके माध्यम से केंद्र सरकार की वजह से हमारे ऐसे स्टेट को, या और भी स्टेट है देश में, अलग अलग राज्य, अलग अलग उनका उत्पादन काम करने की क्षमता है, उनके तरफ से अगर आपने नीति आयोग जो नीति बना रहा है उसके अंदर किसानों को क्या राहत मिलेगी, कैसी मिलेगी, उसको सक्षम कैसा किया जाएगा, उसको और सक्षम करने के लिए हम क्या मदद करेंगे, केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी, व्यापारियों का, हमारे ये उद्योगपतियों का, जो बिजनेसमैन का, इनका योगदान क्या रहेगा, इसको सबको अगर हमने एक जगह लाया तो मुझे लगता है क्या सोयाबीन जैसा मार्केट में आप राष्ट्रीय आयात नीति में कुछ शंका होने से लोगों को शंका होती है, लेकिन उसके बारे में भी हमको सोचना होगा क्या ये जो सोयाबीन है, ये सोयाबीन को व्यापारी को जो कम दाम मिलता है तो उसको कितने भाव मिलेंगे, कब मिलेंगे, हमारी सरकार की यंत्रणा भी है, केंद्र सरकार का भी खरीदी करते हैं, लेकिन कब करते हैं, हमारी खरीदी लेट चालू होती है, जब किसान के खेत में से घर में माल आता है, जब उसको भाव नहीं रहता है, फिर व्यापारी कम भाव में खरीद लेता है, उसके बाद जब भाव बढ़ते हैं और हमारी खरीदी चालू होती है तो हमारी सरकार की खरीदी केंद्र सरकार की होगी या राज्य सरकार के माध्यम से खरीदी, तब किसान का माल तो व्यापारी के पास होता है, लोग बोले व्यापारी के लिए इन्होंने बढ़ाया है, हालांकि वो मकसद नहीं रहता है। आज हमारी गोडाउन की क्षमता कम है, उसके लिए भी अपने अलग अलग हमने 3-4 योजना के बीच बाला साहब के नाम पे स्मार्ट एक ऐसा किसानों के लिए एक नया प्रोग्राम लाया है कि उससे 100 करोड़ रुपए का अनुदान देंगे और उसको सक्षम करने का काम होगा। पोखरा जैसी योजना लाए, उसको 4000 करोड़ रुपए हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है कि किसान को सक्षम करने के लिए। पोखरा जैसी भी एक अच्छी योजना लाई गई कि हमारे 16 जिले जो है मराठवाड़ा और विदर्भ कि यहाँ के 16 जिले जो है, जो वहाँ का किसान आत्महत्या करता है, वहाँ का किसान जो परेशान होता है, उसको सारी मदद करने का काम हमारे पास से पोखरा के अंतर्गत हो रहा है। ऐसे आपके डायरेक्शन में जो भी बदलाव करना है तो बदलाव सिर्फ अनुदान से नहीं होगा, बदलाव सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसको अमल में लाना होगा, और अमल में लाने के लिए आपका भी बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर होना जरूरी है। और ये जो करने के लिए आपको जो भी दिक्कत है, आपको जो भी अपेक्षाएं महाराष्ट्र सरकार से है, तो ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय दोनों भी किसान को सक्षम करने के लिए व्यापारियों का कितनी मदद रहेगी, उद्योगपतियों की क्या मदद रहेगी, वो कैसा कर सकते हैं, उनको क्या अपेक्षित है, सरकार की तरफ से क्या अपेक्षा है, सरकार वो अपेक्षा कैसी पूरी कर सकती है, ये सारी चीजें मैं जो आपके सामने बता रहा हूँ वो यकीनन ऐसे जो बैठे हुए हमारे यहाँ अनेक कई वर्षों से उनका अनुभव है और उनका फायदा हिंदुस्तान को हो रहा है, हमारे महाराष्ट्र को भी होगा। महाराष्ट्र के अंदर जब भी अभी कभी आसमानी संकट आता है, आसमानी संकट ऐसा होता है कि उससे क्वालिटी, गिलोटी, क्वांटिटी सभी बदल जाती है। आपने देखा गैस बारी को हमारा जुलाई अगस्त में जो काफी बारिश हुई, बारिश होने के बाद में 27 लाख हेक्टर जमीन के ऊपर का पूरा माल नष्ट हो गया, उनका नुकसान हो गया। सरकार ने मदद की 1 हेक्टर के बजाय 2 हेक्टर की, जो हमारा एनडीआरएफ के नियम है उससे दुगना दिए, लेकिन इतना दुगना देने के बाद में भी किसान की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, क्योंकि ऊपर से वक्त पे पानी गिरना और उनको सही पानी मिलना और उसके हिसाब से उसको उत्पन्न होना, उसके हिसाब से उसको नफा होना, वो नहीं हुआ तो फिर निराश होता है। फिर निराश के कारण अलग अलग है। उसके लिए भी हमारी बैंक गारंटी हमने जो दिया है कि 3 लाख रुपए तक अपन जो कर्ज देंगे उसका ब्याज वो किसान को नहीं भेजना पड़ेगा। लेकिन बैंकिंग व्यवहार में भी किसान जब लोन लेने जाता है तब उसको इतनी आसानी से कर्ज या लोन नहीं मिलता है। व्यापारी जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है, उसका बिजनेस का, उसकी कंपनी का, उसको बहुत आसानी से वहां कर्ज मिलता है। किसान को देखने का अंदाजा लोगों का ये हो गया है कुछ बैंकों का कि किसान अगर कर्ज लिया वो वापस ही नहीं करेगा, क्योंकि पहले ऐसा कुछ घड़ा है, पहले ऐसा कुछ हमने देखा है और हमारे पिछले 10-20 साल 25 साल का अगर हमने अनुभव लिया तो इसलिए अभी तो केंद्र सरकार ने नियम बना लिया, कानून बना दिया कि आप कोई किसान की कर्ज माफी नहीं होगी, किसान को कर्ज माफी नहीं होना, इसलिए तो उसको बगैर ब्याज के 3 लाख रुपए तक उसकी जमीन 1 हेक्टर होंगी, 2 हेक्टर होंगी, 3 हेक्टर होंगी, जितनी जमीन है उस जमीन के हिसाब से कौन सा पीक ले रहा है वो पीक को कितना कर्ज मिलना चाहिए, ये सारी चीजें अपने अपने लेवल पे जिला अधिकारी होंगे, कृषि अधिकारी होंगे, डीडीआर होंगे, एआर होंगे, तहसीलदार होंगे, ये सारे लोग नीचे के लेवल पे करते हैं, लेकिन उतनी उनको मदद नहीं मिलती।
ये भी कोई किसानों ने, हमने एक दिन किसान भाई के साथ ये जो शुरुआत की है, इसमें छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें, लेकिन उसको सक्षम करने के लिए आपके पास भी यहाँ बैठे हुए जो हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, इनके पास भी बहुत कुछ है और वो बेचारे जिंदगी भर अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से लोगों को सक्षम करने की कोशिश कर रहे हैं, किसान को रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चार्ज है ही, लेकिन उसको नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उसको नई खेती करने का, कैसी खेती करना है, कब खेती करना है, कौन से हवामान में करना है, उसकी जो मिट्टी है उसको तपासा जा रहा है कि इसमें कितना क्षार है, कितना खार है, कितना बाकी के जो कोई पोटेश है, ये सारी चीजें होने के बाद में उसको हम किसान को उतना मार्गदर्शन हमारा कृषि विभाग करता है, कब उन्हें कितना पीक लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, इसकी भी लिमिट होना, नहीं तो हजारों लाखों हेक्टर एक ही माल लेंगे तो उसको भाव नहीं मिलने वाला, ये जाहिर है। और कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो छोटी छोटी चीजें भी अगर हमने उनको अगर सक्षम करने के लिए मदद की तो मुझे लगता है कि इसके अंदर हम परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने पत्थर उछाला वो आसमान को छेद होने वाला है, लेकिन कोशिश तो किसको ना किसको करना पड़ेगी। ये हमारा एक चमन है, वो बोलते ना माना कि इस चमन को गुलिस्तान न बना सकेंगे, लेकिन जिस राह से हमारा किसान भाई चलेगा उसके कांटे जरूर दूर करेंगे। हम थोड़ी कोशिश करना होगी और ये कोशिश जरूर सब मिलकर करेंगे। हमारे जितने यहाँ लोग, जो भी हमको महाराष्ट्र सरकार को, जो भी जैसी भी उनकी नीति है, उनको क्या लगता है, क्या करना चाहिए, उससे क्या फायदा होने वाला है, कौन सा नुकसान कम होने वाला है, ये जितनी सूचनाएं देंगे उसमें आने वाले मार्च का जो बजट होगा उसके अंदर हम भी कोशिश करेंगे कि मार्च के बजट में सरकार को अपना बजट पेश करते समय वहाँ का किसान उसको सामने रखते हुए त्याला समोर ठेवूनच आपल्याला पुढच्या राजकारणाच्या रूपरेषा आणि दिशा ठरवल्या जातात। कारण की आपला शेतकरी हा एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे आणि तो महत्त्वाचा केंद्रबिंदू असल्यानंतर त्याला न्याय देण्याचा काम, त्याला पुढे भविष्यामध्ये सक्षम करण्याचा काम आणि त्याला तुमच्या माध्यमातून अजून कसं सक्षम करता येईल, शासनाच्या वतीने काय करता येईल, केंद्राच्या वतीने काय करता येईल, राज्याच्या वतीने काय काय, हे जरूर आपण प्रयत्न करू। धन्यवाद, आदाब, सलाम, राम राम, जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। नैसर्गिक शेती कृषी व्यवसाय या संदर्भातील आपल्या आश्वासक वक्तव्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद। कहते हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। और हमें बेहद खुशी है कि आज मंजिल की ओर कदम बढ़ाने वाले मान्यवर आज हमारे मंच पर उपस्थित है, मौजूद है, उनके प्रति कृतज्ञता हम व्यक्त करते हैं। And now, ladies and gentlemen, is it time to release the AgriCorp souvenir by Honorable Agriculture Minister श्री अब्दुलजी सत्तार साहेब। महाराष्ट्राचे सन्माननीय कृषी मंत्री माननीय नामदार अब्दुलजी सत्तार साहेब यांना मी विनंती करते की कृपया त्यांनी स्मरणिकेचे प्रकाशन करावे। माननीय कृषी मंत्र्यांच्या हस्ते या स्मरणिकेचे प्रकाशन होत आहे। मनपूर्वक धन्यवाद। एखादा कार्यक्रम जेव्हा होत असतो तो काही तासांचा असतो, पण त्यामागे जी मेहनत असते ती अनेक महिन्यांची असते आणि ह्या सर्वांची माहिती ह्या स्मरणिकेमध्ये आहे। मनपूर्वक धन्यवाद। थँक्यू सो मच एव्हरीवन। आणि आपण ह्या उद्घाटन समारंभाच्या सांगतेकडे चाललोय। May I request Shri Sandeep Ji Khosla, Director General, Bombay Chamber of Commerce and Industry, to propose a vote of thanks. Thank you, ma'am. We have such wonderful thoughts which were shared by Sri Abdul Sattar Ji. So I would like to thank
First of all, the Honorable Chief Minister, Shri Eknath Ji Shinde, although he couldn't come, he sent us encouragement words and his blessings for this two-day conference. I am also thankful to Shri Abdul Sattar Ji for his views. He really has, told as to how agriculture has to grow as far as Maharashtra is concerned. And सर हमारी जो 2 दिन के कॉन्फ्रेंस है इसका जितने स्पीकर्स हैं वो श्री गोयल साहब ने ही पूरे चूज किए हैं. ही वॉज वेरी क्लियर कि कौन कौन इसके अंदर होना चाहिए क्योंकि सारे एक्सपर्ट्स इनको पता है. तो बॉम्बे चेंबर की जो एग्रीकल्चर कमेटी है जिनके हमारे मेंटर गोयल जी है और राजन राजे और चेतन दोनों मेंबर्स हैं, ये 2 दिन में हम लोग काफ़ी सारा डिस्कशन करने वाले सब एक्सपर्ट्स के साथ में. फिर आपको एक डॉक्यूमेंट भेजेंगे जो हमारी तरफ से हेल्प करेगा एग्रीकल्चर ग्रो करने महाराष्ट्र के लिए. सो विद दैट we'll continuously keep on giving you feedback because the chamber का काम ही वो है. आपके आने के पहले मैं बता रहा था कि एक तो हमने बॉम्बे चेंबर 1836 में आज से 186 साल पहले बना था और मुंबई में जो रेल, तब तो बॉम्बे था, बॉम्बे थाना का जो रेलवे आया था वो बॉम्बे चेंबर की वजह से ही आया था. मेन रीजन बॉम्बे चेंबर था उसका. और इतने सालों में हमारी जितने कमिटीज़ हैं वो रिकमेंडेशन देते रहते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को. सो आरबीआई हम हर क्वार्टर हमारे से पूछता है कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, नया मॉनेटरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए. फाइनेंस मिनिस्ट्री को हम भेजते रहते हैं. तो हम एग्रीकल्चर का कमेटी से भी आपके लिए बहुत सारे कुछ भेजेंगे सो दैट इट कैन हेल्प यू. So thank you sir, thank you once again for coming and giving your views to us. I would also like to thank Sri Ramachandra ji who's flown specially from Delhi to be with us today and give us his views as to how agriculture in different parts of the country is growing and how Maharashtra can also learn and others can learn from Maharashtra because we are one of the best as far as Maharashtra is concerned. The kind of innovation which we've done. The chamber has now a lot of technology-driven companies, agri-tech startups, which are going to help grow business and in agriculture, and at some point of time we'll compete with the best in the world. So my thank you to Mr. Ramesh Chandji, to our Goyal Sahab, without whom this wouldn't have been possible, and he continues to guide us as we go along from here. Our chairperson of the committee, Shri Rajan Rajeji, Chetan, and all other members of the committee. Niranjan from Kisan, who's also helped us, organize that. There's an exhibition which is going on next door. Whenever you have time, please visit that as well. There are a lot of FPOs there who are participating in this. Without our sponsors, this wouldn't have been possible. So Celsius Logistics Solution, NABARD, Samuniti Financial Intermediation and Services Private Limited, UPL, BASF, Quality Control of India, Rallies India, one of our oldest members, State Bank of India, NEML, and our television partner, that's ABP Maja. Thank you to all of you for this. And to my team, our Joint Director Sunil Nair, without whom this wouldn't have been possible again. He's put a lot of hard work in this. His colleagues Tarini and Vikas, and our HR and admin head Prashant Digambar, who put this, all the logistics together, and all my BCCI colleagues. So once again, thank you all for being here. Thank you, sir. Thank you, Minister Saab, and we welcome all interaction with you in the future as well. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone. सर्वांना मनपूर्वक धन्यवाद, आभार. After this inaugural session, we'll have a quick tea break, and all of us will make sure that we come here again in 10 to 15 minutes max. Thank you so much.